مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب خوش ہیں؟ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، 24 منٹ ہے. کتنے؟ 24 منٹ ہے ہمارے پاس، جس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں کریں گے. پیدائش کی کتاب نکالیے گا. پیدائش کی کتاب پہلا باب خدا کے کلام میں سے پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے. جی. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو کیا کیا؟ پیدا کیا. مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، انگلش ورژن جو ہے وہ میں گانا بھول گیا ہوں. اگر کسی کے پاس ہو فون میں تو آپ اسے پڑھ رہے وہاں پہ بھی کیا لکھا ہے. یاد رکھیے گا، یہاں پر ہم نے پڑھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو کیا کیا؟ پیدا کیا. لفظ خدا کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے، آج صاحب آپ دونوں نیچے ہاتھ کریں. جی. لفظ خدا کا کیا مطلب؟ آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے، بتائیں. خود سے پیدا. بیٹھ جاؤ. آگے. جی. پیدا ہونے والا صرف خود سے. پھر وہی بات غلط. لفظ کیا ہے؟ خود سے. اے 3 سال کے اسٹوڈنٹ کا حال ہے تاکہ کیوں ہوئے گا. لفظ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خود سے. خود سے. خود آ. خود آ. خود سے آنے والا. خود سے. اس کا کوئی باپ اور اس کی کوئی ماں نہیں ہے. آمین. خدا کسی کا بیٹا نہیں ہے. آمین. خدا سب کا باپ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہاللیلویا. یہ ہے بائبل. خود سے. خدا خود سے. آمین. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پہلے سال کے اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں ضروری تھی. خود سے. پھر آگے خدا نے ابتدا میں. وہ ابتدا دنیا کی تھی یا خدا کی تھی؟ کس کی تھی؟ جی. کس کی ابتدا تھی؟ دنیا کی ابتدا تھی، نہ کہ خدا کی ابتدا تھی. خدا پر کوئی شروع اور کوئی آخر نہیں ہے. خدا پر عروج اور زوال نہیں. آمین. انسانوں پر، درختوں پر، پانیوں پر، سمندروں پر، پہاڑوں پر، جانوروں پر، درندوں پر، چوپاؤں پر، پرندوں پر، جو جتنے بھی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہے اس کے اندر زوال، عروج اور زوال دونوں آتے ہیں. پر خدا کی ذات پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. آمین. ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو کیا کیا؟ خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. کتنے آسمان ہیں؟ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، جسے ہم تیسرا کہتے ہیں اس کے اوپر چوتھا نہیں ہے. ہمارے اسلامی بھائی وہ کہتے ہیں 7 آسمان ہیں، پر بائبل بتاتی ہے پہلا، دوسرا اور تیسرا. جو تیسرا ہے اس پر خدا کا مانا جاتا ہے کہ خدا وہاں پہ ہے. آمین. کیونکہ خدا کے اوپر پھر اوپر کوئی آسمان نہیں. خدا کی مخلوق پر خدا ہے، خدا کے اوپر کوئی خدا نہیں.
आमीन, हालेलुया। खुदा ने इब्तिदा में आसमानों और जमीन को पैदा किया। तो जमीनें कितनी है? जमीन एक स्यारा माना जाता है ना, साइंस के हिसाब से जमीन एक स्यारा है। तो स्यारे और भी हैं, पर जिंदगी जहां पर है वो यही स्यारा है। आमीन। और कई बार लोग जब जमीन से जो चांद की तरफ गए, जब वो चांद पे गए हैं तो जमीन ऊपर थी और चांद नीचे था। मतलब जिन्होंने रिसर्च की है, गए हैं, तो वो यहां से यूं गए हैं, पर जब वहां पर जाकर पहुंचे हैं तो जमीन नीचे थी, चांद ऊपर था। है जी? जमीन पे होते हैं। ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये जमीन यूं है और ये चांद और सूरज के सामने चक्कर काटती है। आमीन। सूरज इस जमीन से 10 गुना बड़ा है। ऐसी 10 जमीनें हों तो फिर जाकर सूरज बनता है। आमीन। अच्छा चलो खैर, कोई बात नहीं। तो हमने पढ़ा कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को क्या किया? पैदा किया। जमीन और आसमान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आमीन। आसमान का इल्म अलग है, जमीन का इल्म अलग है। पर जमीन पर हम देखते हैं कि खुदा ने जमीन पर समुद्र को बनाया, पहाड़ों को बनाया, वादियों को बनाया, सहरा को खुदा ने बनाया। जो कुछ भी आपको नजर आता है वो सब कुछ खुदा ने बनाया है। आमीन। और चश्मे चलते हैं, और क्या चलते हैं? पहाड़ों से चश्मे निकलते हैं, चश्मे नालों में बदलते हैं, नाले नदियों में बदलते हैं, नदियां दरियाओं में बदल जाती हैं, और दरिया जो हैं वो फिर समुद्रों में तब्दील हो जाते हैं। पर फिर इसी तरह समंदर भी दरियाओं में, और दरिया जो है वो नदियों में, और नदियां जो है वो नालों में, और नाले जो है वो छोटे छोटे खालों में तकसीम होकर तो जमीन को सैराब किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि पानी यूं चक्कर काटता है, यूं आता है और यूं जाता है। क्योंकि सतह समंदर जो है वो भी जमीन से 41 से 42 फुट ऊंचा है। अगर पानी ऊपर ना हो तो वो कभी भी जमीन पर फैल नहीं सकता। सैलाब इसलिए आते हैं क्योंकि पानी ऊंचा है। हाँ, सैलाब तब आता है जब खुदा सैलाब की नाली को काटता है। कलाम में लिखा है कि वो सैलाब को उसने रोका है, उसने समंदर को कुआर लगाए हुए हैं। ये अगली बार आमीन बातों को सीखेंगे। सब बोले हालेलुया। बाइबल ये बताती है। तो आगे क्या लिखा है? दूसरी आयत में पढ़िएगा जरा। और जमीन वीरान और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती। हालेलुया। अब सुनिए मेरी बात। अगर आप ये टेबल लें और इसकी सारी फटियां उखेड़ दें, और सारी फटियों को उखेड़ कर आप यहाँ पर रख दें, तो आप क्या कहेंगे? फटियां लकड़ियां कहेंगे। या आप एक सोफा लें, उसको सारा खोल दें और रख दें, तो आप उसे सोफा तो नहीं कहेंगे। जमीन और आसमान, उसकी सारी मखलूकात, ये खुदा के अंदर है। खुदा के किसके अंदर है? खुदा के। एक नजरिया मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं लो जी बाइबल की बात हो रही थी, फलाने की बात क्यों हुई है? भाई जब बाइबल की बात हो रही है तो ये मजहब की, दीन की बात हो रही है। तो जब दीन की बात हो रही है तो आपको तो ये भी तो पता होना चाहिए ना दूसरे क्या मानते हैं। पहले अपने घर के बारे में पता होना चाहिए, फिर दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। अगर पौलुस ने यूनानियों को बदला तो उसने पहले यूनानियों को जाना कि यूनानी क्या मानते हैं। आमीन। जो कोई जिसे मानता है उसके बारे में पता तो होना चाहिए ताकि उससे गाइड कर सके। तो बताने का मतलब ये है कि हिंदू जो हैं
बातों के बारे में ये है कि जब कृष्णा शिव छोटे ही थे तो उसने कुछ खा लिया, शायद चोरी मक्खन खाया, तो औरतों ने इल्जाम लगाया, उसकी माँ को कहा कि तेरे बेटे ने हमारा मक्खन चुराया है। उसने कहा कि तुम मुंह खोल, मैं देखना चाहती तूने खाया। तो वो उसने, उसके बारे में लिखा है कि जब उसने अपने मुंह को खोला तो कृष्णा की माँ ने, शिव की माँ ने देखा कि जमीन और आसमान और जितने भी सितारे हैं उसके अंदर हैं, तो वो डर गई, बेहोश हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि वो कृष्णा को और यीशु को सेम मानते हैं, कहते हैं यीशु हो, गॉड हो, यहोवा हो, सेम एक ही खुदा है। उनका कहना ये है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सब कुछ खुदा के अंदर था। आमीन। वो सिर्फ सामने नहीं था। नया आसमान और नई जमीन के बारे में खुदा ने यशायाह की किताब में लिखा है। अभी नया आसमान और नई जमीन हमारे सामने नहीं है, पर कलाम में लिखा है कि मैं नया आसमान और नई जमीन को बनाता हूं। जैसे नया आसमान और नई जमीन मेरे हुजूर कायम रहेंगे, बनी इस्राइल भी कायम रहेगी। खुदा ने कहा कि नई नस्ल राष्ट्रवाद भी मेरे हुजूर कायम रहेगी। खुदा दो चीजों को हमेशा के लिए कायम करने को है, नए आसमान को और नई जमीन को, और फिर नए लोगों को, वो जो नए सिरे से पैदा होते हैं, खुदा उनको कायम रखेगा। हालेलुया। ये बाइबल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको बताने का मतलब ये है कि ये जो आपने पढ़ा है ये बेतरतीबी थी। देखें ना कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीनों आसमान को बनाया, तो मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ था नहीं, ये था, मौजूद था, पर ये नजर नहीं आ रहा था। जैसे मैंने मिसाल दी कि सोफा जब तक उसे जोड़ा नहीं जाता, उसके पीसेस जोड़े नहीं जाते, तो उसे सोफा या कुर्सी या टेबल नहीं कहा जाता। पर जब उसके पीसेस को जोड़ दिया जाता है तो उसकी प्रॉपर एक शक्ल, एक शेप जो है वो सामने आ जाती है, ढांचा सामने आ जाता है, और फिर उस ढांचे की पहचान हो जाती है कि ये क्या है। आमीन। अगर आप पाइप लाख लोहे की जैसी कुर्सी है, आप पाइप काट के यहाँ पे रख देंगे तो हर यही पूछेगा ये क्या है, क्या बनाने लगे। जब तक वो बनकर सामने ना आए आप उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ खुदा के अंदर था, खुदा के ख्याल में था। खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। उसके लिए कुछ बनाना, कुछ करना मुश्किल नहीं। कलाम में तो यहाँ तक लिखा है कि वो जो गुजर जाता है उसे बुला लेता है। आमीन। जो नहीं है उसे वो बुला लेता है, जो गुजर गया उसको भी बुला लेता है, और जो नहीं है उसे वो ले आता है। ऐसा वो कर सकता है। आमीन। ऐसा वो कर सकता है। उसके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है। तो इन बातों को समझना बड़ा जरूरी है। खुदा ने जब अपने मुंह से कलाम को डिलीवर किया, क्या किया? ठीक है, कलाम को क्या किया? अपने मुंह से जब कलाम को डिलीवर किया तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने जैसा कहा वैसा हो गया। आमीन। ये बड़ी गहरी बातें हैं, सुनिएगा। बहुत सारी चीजें जो कि जमीन के असफल में होती है, जमीन के रहम के अंदर है सब कुछ। आमीन। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मदनियात, बहुत सारी चीजें जो है वो जमीन के असफल में है, जमीन के रहम में है, जमीन की गहराई में है। लोग उसकी रिसाई के लिए काम करते हैं और उन्हें वो चीजें क्या होती हैं? मिल जाती हैं। देखे ना, तेल जमीन से निकलता है, सोना जमीन से निकलता है, हर तरह की धात जमीन से निकलती है, नमक जमीन पर ही है, यानी कि पहाड़ों से मिलता है। यानी कि सब चीजें इसी जमीन के अंदर है। और खासकर जो है वो भी कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो कहां पर है। बागे अदन की जो सरजमीन है, मुल्क किनान जो है, और जो चार वहां पर नदियां हैं,
एक की बाबत लिखा है कि वहां पर सोना चोखा होता है, उसका सोना चोखा है। याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा हुआ है, खुदा ने सब चीजों को क्रिएट किया है। आमीन। तो जब तक कोई चीज बन के सामने नहीं आती, उसके बारे में समझ नहीं आती, तो कहने का मतलब ये है कि बनाने के लिए सबसे पहले मंसूबा किया जाता है, और ये खुदा ने अपने इरादे में इसे रखा और खुदा ने फिर इसे बनाया। क्या किया? बनाया। और किसके लिए बनाया? लिखा कि खुदा ने अपने बेटे के लिए इन सब चीजों को क्या किया है? बनाया है। आमीन। लिखा है कि सब चीजें मसीह के लिए हैं, जो गुजर चुकी है, जो आने वाली है, हाल और मुस्तकबिल की सब चीजें मसीह के लिए हैं। आमीन। हालेलुया। याद रखिएगा, लेकिन खुदा ने इब्तिदा में आसमान और खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। तो लफ्ज जो पैदा है उसका मतलब है जाहिर होना। क्या होना? जाहिर होना। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। तो जो लफ्ज पैदा है, ये इसका जो मतलब मैंने आपको बताया वो है जाहिर होना। क्या होना? जाहिर होना। जाहिर वो होता है जो पहले से मौजूद होता है। आप समझ आ रही? यहाँ पर आपको मेरी और ज्यादा साफ आ जाएगी सामने। पैदा वो होता है जो मौजूद होता है, अगर होना तो वो पैदा नहीं हो सकता। जरूर है कि कहीं वो पोशीदगी में पहले मौजूद हो, जरूर है कि पहले वो पोशीदगी में मौजूद हो। जरा ज़बूर निकालिएगा 139, 10 आयत से पढ़िएगा बेटा, खुदा के कलाम में से जल्दी से। तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। बल्कि 8वें आयत से पढ़ना शुरू कर जी। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां तू है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहाँ भी है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख वहां भी तू है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं, अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं, तू वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूँ कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, अगर मैं कहूँ कि तारीकी यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, हाँ जी, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है, क्योंकि रात भी तेरे सामने दिन की मानिंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं, उजाला और अंधेरा दोनों यकसा हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, मेरी माँ के पेट में तूने मुझे क्या बख्शी? सूरत। इंसान जो पैदा होता है, जो जाहिर होता है, वो पहले अपनी माँ के रहम में होता है, वो नजर नहीं आ रहा होता, पर जब वो पैदा होता है फिर वो नजर आता है। उसका कलर कैसा है, वो बेटी है, वो बेटा है, जब अपने माँ के रहम से बाहर आती है। तो खुदा जो है, जब खुदा बोलता है तो आप ऐसे समझे कि जैसे बच्चा पहले मौजूद है और वो अपनी माँ से पैदा होता है, जब खुदा अपने मुंह से कलाम निकालता है, जिस चीज के बारे में वो चीज सामने आ जाती है, वो जाहिर हो जाती है। हालेलुया। ये मिसाल दे रहा हूं मैं आपके सामने, ये मिसाल है कि जैसे माँ के रहम से बच्चा इस दुनिया में जाहिर होता है और लोग आकर मुबारकबादी देते हैं कि बेटा या बेटी हुई है, लोग उसी हिसाब से मुबारकबादी देते हैं। तो याद रखिए, खुदा जब कलाम करता है तो फिर वो तमाम चीजें ज़हूर में आती हैं जो कि खुदा के अंदर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन कोई मर्द पैदा होता है ना दुनिया में, तो वो
اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں, عورت اور مرد بھی, سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ سب کچھ خدا کے اندر ہے. اور لکھا ہے مرد خدا کی صورت ہے, مرد خدا کی صورت ہے. جیسے خدا سب چیزوں کو کریٹ کرتا ہے, اس نے مرد کو بھی یہ برکت دی ہے. ہاللیلویا. اور برکت کا جو وعدہ, جو برکت دے سکتی ہے, وہ دے سکتا ہے وہ مرد ہے, کہ مرد اپنے بچوں کو یا لوگوں کو برکت دے, کیونکہ مرد خدا کی صورت ہے. اسی طرح عورت مرد کی صورت ہے, اور عورت جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کے لیے, خاندان کے لیے برکت کا سبب بن سکتی ہے. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے عورت کو پیچھے کر دی ہے, عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. سب بولے ہاللیلویا. مجھے آگے پڑھیے گا, تھوڑا سا ٹائم لگے. کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا, کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا, میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی. آگے ہے. میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں. ہاں جی آگے. تیرے کام حیرت انگیز ہیں. ہاں جی. میرا دل ایسے خوب جانتا ہے, اسے خوب جانتا ہے. اسے خوب جانتا ہے. ہاں اسے خوب جانتا ہے. جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا, جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا, اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے میں زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا, تو میرا میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا. اور انہوں نے دوستو, جیسے عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کے رحم میں ہوتا ہے, اسی طرح آدم انسان مٹی کے اندر زمین کے اسفل میں تھا. خدا نے وہاں سے نکالا. اور زمین کو کہاں سے نکالا؟ پانی سے. کہاں سے نکلنا ہے؟ پانی سے. مٹی کو پانی سے دیا ہے. پانی مٹی میں نہیں ہے, مٹی پانی میں تھی. اور خدا نے پانی کو پانی سے جدا کیا ہے. اوپر کا پانی اوپر, نیچے کا پانی نیچے. اور فضا ہے. فضا پہلا آسمان ہے, اور فضا اور پانی کے درمیان میں زمین ہے. دیکھو نا, تھلے پڑتے جاؤ گے جب پانی, اتنے بھی پانی. تو یہ خدا کی قدرت ہے. آپ کو پتہ ہے پانی میں ہوا ہوتی ہے, گیسز ہوتی ہے. اگر پانی کے اندر ہوا نہ تو وہ ٹریول نہیں کر سکتا. خیر سے بیٹھے رہے انجینئر بھی. ہاللیلویا. تو یہ خدا کی مرضی ہے, یہ خدا کی ترتیب ہے, یہ خدا کی حکمت ہے, یہ خدا کی عقل ہے. میں زمین کے اسفل میں کیا ہو رہا تھا؟ عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا. عجیب. علم کی بات ہو رہی ہے نا. تو جب کوئی چیز اپنی ماں کے, جب کوئی انسان یا جانور, کسی کا بھی بچہ اس کے رحم میں بن رہا تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے. اور ایک وقت ہوتا ہے اس کی خوبصورت شکل, عجیب سے خوبصورت شکل سامنے آتی ہے. تحقیقات بہت آگے نکل رہی ہے. لکھا کہ اخیر زمانہ میں جو حکمت ہے, عقل ہے, وہ افزوں ہو جائے گی, بہت زیادہ ہو جائے گی. آگے بڑھیے گا. تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا, تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا, اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے, ہاں جی, وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے. وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے, جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا, جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا. اے خدا, تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں. آمین. سب بولے ہاللیلویا. آئندہ پھر تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے اور اس کو مزید سیکھیں گے. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ لفظ خدا کا کیا مطلب ہے؟ خود سے آنے والا. ٹھیک ہے, خود سے, معبود, دیوتا, اختیار رکھنے والا خدا. آمین. جتنی چیزوں کو ہم نے سیکھا ہے ان کو مزید آگے ہم کریں گے. خدا آپ کو برکت دے. آئیے آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے.